ایک حدیث کے اندر آتا ہے جو لوگ زکات نہیں دیتے اللہ رب العزت ان کے مالوں کا سانپ بنا دے گا. زہریلا گنجا سانپ جو ہوتا ہے جس کے اوپر سے بال اور روئیں اڑ جاتے ہیں زیادہ زہر کی وجہ سے، اور وہ گلے میں لپٹ کر کے زکات نہ دینے والے کو یہاں پیشانی پہ سے کاٹے گا، ڈسے گا، یہ چیخیں مارے گا زہر کی وجہ سے، اس کی چیخیں نکلیں گی. یہ جتنا چیخے گا وہ سانپ بھی بولے گا زور سے، انا کنزک وانا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، سونا چاندی ہوں، زیورات ہوں، روپے پیسے ہوں، جو دنیا میں تو جمع کر کر کے جوڑ جوڑ کے رکھتا تھا وہ ہوں. اللہ نے آج مجھے تیرے اوپر مسلط کر دیا ہے، اور میں جب تک تجھے ڈستا رہوں گا جب تک یہ قیامت کا دن ختم نہیں ہو جاتا اور فیصلہ نہیں ہو جاتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. فقد قال اللہ تبارک وتعالی والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ اب دوسرے مرحلے کے اندر داخل ہو گیا ہے. پہلا عشرہ جو رحمتوں والا تھا وہ گزر گیا. جنہوں نے اس میں محنت کی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کی پابندی اور اہتمام کیا، اور اس کی ایک ایک ساعت اور لمحہ کو قیمتی سمجھ کر کے اسے وصول کرنے کی کوشش کی، وہ سعادت مند اور خوش نصیب ہیں. اب وہ اس دوسرے مرحلے کے اندر داخل ہو گئے کہ اللہ رب العزت اس عشرے کے اندر اپنے بندوں کی مغفرت کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں. اس بندے کی مغفرت کر دی، اس کی مغفرت کر دی، اس کی بخشش کر دی، اس کی بخشش کر دی، اس کے گناہ معاف کر دیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے اس مہینے کے روزے ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے رکھے، اللہ اس کے پچھلے صغیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اور جس نے اس مہینے کے اندر قیام کیا، راتوں میں کھڑا رہا، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ تراویح میں کھڑا رہا، تہجد میں کھڑا رہا، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، دکھلاوے کے لیے نہ ہو، کوئی اور نیت نہ ہو، سب پڑھ رہے تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، سب کھڑے ہوئے ہیں، لمبی نماز پڑھ رہے ہیں، بس ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. اس طرح کی نیت کے اندر کوئی بھی خرابی نہ ہو، نقص نہ ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے بھی پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب ہم رمضان المبارک کے اس مرحلے کے اندر داخل ہو گئے کہ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو حکم دے رہے ہیں میرے فلاں بندے کی مغفرت کر دو، اس کی بخشش کر دو، اس کی مغفرت کا پروانہ جاری کر دو. میرے دوستو، ہمیں فکر کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو یہ مہینہ ایسے ہی گزر جاوے اور ہم اس میں کچھ نہ کر سکیں. پوری زندگی غفلت و سستی کے اندر گزر رہی ہے. میرے دوستو، یہ 1 مہینہ ہے، محنت کر لو اس کے اندر، اور پھر انشاءاللہ دوسرے مہینوں کے اندر
तरावी नहीं है, सहरी नहीं करनी है, आपको जल्दी नहीं उठना है, दिन में आपको भूखा प्यासा नहीं रहना है, बहुत सहूलत है, बस 5 वक्त की नमाज है और जो जरूरी अहकाम हैं उनकी पाबंदी करनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये महीना इसलिए लेकर के आते हैं, अपने बंदों का तज़किया फरमा दे, उनके दिलों को साफ फरमा दे, गुनाहों से उन्हें पाक फरमा दे, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ फरमा दे और उन्हें जहन्नम से नजात दे करके जन्नत का मुस्तहिक बना दे। मेरे भाइयों दोस्तों, इस्लाम के अहम फरीजों में से एक फरीजा ज़कात का है। 5 अरकान हैं इस्लाम के, 5 सुतून हैं। जिस तरह इस मस्जिद के 2 सुतून नजर आ रहे हैं जिन पर यह पूरी छत टिकी हुई है, ये हटा दिए तो छत गिर जाएगी। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं समझाया कि इस्लाम की गोया एक छत के मानिंद है और उसके 5 पिलर और सुतून हैं। अगर एक सुतून को हटा दिया, ये छत अपनी जगह बाकी नहीं रहेगी, अपनी हालत में ये बरकरार नहीं रह सकती। तो फरमाया 5 सुतून हैं। सबसे पहला सुतून कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान लाना है। नंबर 2, नमाज कायम करना है, पूरी जिंदगी नमाज पढ़ना है। मेरे भाइयों नौजवानों, ऐसा ना हो रमजान में हम नमाजी हैं, जुमे के दिन हम नमाजी हैं और पूरे साल नमाज से दूर हैं। नहीं मेरे दोस्तों, 15 साल का जब आदमी हो जाता है, बालिग हो जाता है, उस पर नमाज फर्ज हो जाती है। 5 वक्त की नमाज फर्ज है, सिर्फ रमजान में नहीं, आखिरी लम्हे तक। आदमी को जब तक होश है, जब तक आदमी बैठ कर नमाज पढ़ सकता है, आदमी इशारे से नमाज पढ़ सकता है, लेटा लेटा नमाज पढ़ सकता है। मेरे भाइयों, नमाज माफ नहीं है, ये ऐसा फर्ज है। और तीसरे नंबर पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम का जो सुतून बयान फरमाया, वो फरमाया ज़कात है। ज़कात, अपने मालों में से ज़कात देना फर्ज है। अगर कोई आदमी ज़कात का इनकार कर दे, वो इस्लाम से बाहर हो जाता है, खारिज हो जाता है। इनकार की गुंजाइश नहीं है। इसको अकीदे में दाखिल करना कि ये इस्लाम का अहम फरीजा है, ये हर मुसलमान के जिम्मे है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, और ये ज़कात सिर्फ मुसलमानों पर फर्ज नहीं, पहली उम्मतें जितनी भी आई, पहले पैगंबर जितने आए, पहली किताबें जितनी भी हैं आसमानी, तमाम के अंदर ज़कात को फर्ज किया गया है। सिर्फ हमारी उम्मत पर ज़कात फर्ज नहीं है। और ज़कात कोई इतना लंबा चौड़ा मामला नहीं होता। हम टैक्स देते हैं, कहीं 5% है तो कहीं 18% है, GST भरते हैं, वो देनी ही पड़ती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो ज़कात माल से निकलवाते हैं कुल 2.5%, 100 रुपए में 2.5 रुपया, 1 लाख के अंदर 2,500 रुपए कुछ भी नहीं है। बस जिसका ईमान है उसके लिए कुछ भी नहीं है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, तुम ज़कात निकालोगे मालों की, हम इस ज़कात को बढ़ा देंगे। घटाना बढ़ाना हमारा काम है, घाटा देना नफा देना हमारा काम है, मालदार बनाना गरीब बनाना हमारा काम है, बादशाह बनाना रियाया बनाना हमारा काम है। ये तो हम जिसको चाहते हैं आगे बढ़ा देते हैं और जिसके चाहते हैं रस्सी को खींच करके उसे रोड पे लाकर खड़ा कर देते हैं। सब अक्लें और दानिशमंदियां और हुनर और फन सब रखे रह जाते हैं। एक आदमी पढ़ा लिखा है, होशियार है, लिखना पढ़ना जानता है, इंग्लिश भी जानता है, अरबिक भी जानता है, कितनी जबानों का माहिर है, मगर रिस्क के दरवाजे उसके लिए बंद हैं। वो मोहताज है, परेशान है, घर के खर्चे भी पूरे नहीं होते। एक आदमी है जो एक सतर नहीं लिख सकता, सही तरह से अपना साइन नहीं कर सकता, वो आदमी वो करोड़पति है, अरबपति है। ये अल्लाह की तकसीम है। तो अल्लाह कहते हैं, जो कुछ तुम्हारे पास है मेरे बंदो, इसे अपने ईमान और यकीन में दाखिल कर लो, ये मेरा दिया हुआ है,
तुम्हारी अक्लमंदी का और तुम्हारी मेहनत का कोई कमाल नहीं है। मेहनत तो रक्षा वाला तुमसे ज्यादा करता है, मेहनत कारखानों के अंदर मजदूर तुमसे ज्यादा करते हैं, फैक्ट्रियों और कंपनियों के अंदर 12-12 घंटा वो खड़े रह करके मजदूरी करते हैं, लेकिन उनके पास माल नहीं है। आप थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ा सा हाथ चलाते हैं, जहन को काम में लाते हैं, अल्लाह ने आपको करोड़पति अरबपति बना दिया है। ये आपका कमाल नहीं है, अल्लाह की अता है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह की नवाजिश और मेहरबानी है। एक ईमान वाले का ये ईमान और यकीन होना चाहिए। मेरे दोस्तों, ज़कात देना ये ऐसा फर्ज है जो अल्लाह ने कुरान करीम में नमाज के साथ तकरीबन 37 जगह बयान फरमाया है। अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, तुम नमाज कायम करो और ज़कात दो। ये लफ्ज़ ज़कात अरबी जबान का लफ्ज़ है, इसका माना आता है बढ़ाना, बरकत देना, इजाफा करना, पाक करना। यानी ज़कात देने से माल बढ़ता भी है, माल भी पाक होता है और आदमी का दिल भी पाक होता है। बुख़्ल, कंजूसी आदमी की तबीयत से खत्म हो जाती है। हाँ, जो माल की मोहब्बत जड़े पकड़ी रहती है आदमी के अंदर, वो आहिस्ते आहिस्ते ज़कात सदका देने से खत्म हो जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्न सलातक सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। मेरे नबी, आप इनके मालों से ज़कात लीजिए, इससे क्या होगा? ये भी पाक हो जाएंगे, इनके माल भी पाक हो जाएंगे, इनका तज़किया हो जाएगा। आप इनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह इनको बरकतें डाल देंगे। कहते हैं ना भाई, बरकत का तो थोड़ा भी बहुत होता है और बेबरकती का बहुत भी कुछ नहीं होता। आप लोग देखते हैं कि रात दिन कारगुजारी सुनते हैं, बहुत पैसे कमा लिए किसमें? ओलेक्स में, बहुत पैसे कमा लिए कटलू काट करके, धोखा दे करके, लेकिन सुकून नहीं है, वो माल उनके पास बाकी नहीं रहता। जो लोग मेहनत से कमाते हैं, ईमानदारी से कमाते हैं, उनका माल बाकी भी रहता है और बढ़ता भी रहता है। तो हमारा ये यकीन होना चाहिए, अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह का जो हुक्म है वो हमको पूरा करना है, और अगर पूरा नहीं किया तो इस पर बहुत खतरनाक वईदें, बहुत खतरनाक धमकियां और बहुत खतरनाक अजाब है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से। अव्वलन दुनिया के अंदर से बरकतें खत्म कर दी जाएंगी उस माल की, उस माल का सुकून जो मिलना चाहिए आदमी को वो खत्म हो जाएगा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान से अपनी रहमत की बारिशें रोक लेंगे। कहत साली शुरू हो जाएगी दुनिया के अंदर। अब देखते हैं आप लोग, पहले जमाने में बहुत बारिशें होती थी, अब बारिशें कितनी कम हो गई। पानी की तंगियां हैं, पानी की परेशानियां हैं, बड़ी तकलीफें हैं। लोग जब तक ज़कात की तरफ और दीन की तरफ नहीं आएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानियां पूरे तरीके से अपने बंदों की तरफ मुतवज्जह नहीं होंगी। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, अगर तुमने ज़कात नहीं दी तो क़यामत के दिन तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। इतना बुरा हाल होगा, सोना चांदी जो तुम्हारे पास माल जमा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी तख्तियां बना देंगे, और तख्तियां बना करके उनको जहन्नम की आग पर गरम फरमाएंगे, और गरम करवा करके जब वो सुर्ख हो जाती है लोहा, आप देखते हैं, अल्लाह फरमाते हैं यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। क्या होगा? उस तख्ती को जो सुर्ख होगी जहन्नम की आग से, पेशानी पर लगाया जाएगा। हाँ, ये पेशानी जल करके खत्म हो जाएगी, फिर यहां पहलू पर लगाया जाएगा, फिर इस पहलू पर लगाया जाएगा, फिर पीछे से लगाया जाएगा। मुफस्सिरीन ने, उलमा इकराम ने लिखा है कि जब कोई आदमी ज़कात लेने वाला, हुकूमत के आदमी हुआ करते थे पहले, जो ज़कात वसूल करते थे, वो पहुंचते थे, या अब जो ज़कात लेने के लिए घरों पर आते हैं तो आदमी को नागवारी होती है, वो मुंह चढ़ाने लगता है, उसकी पेशानी पर बल पड़ जाते हैं, लो ये आ गए ज़कात लेने के लिए। खंदा पेशानी से मुलाकात करनी चाहिए, जितना हमसे दे दीजिए, नहीं है तो ठीक है, अब हमारे पास ज़कात नहीं है, उसको 50-100 रुपए दे करके आपके घर पे आया, विदा कर दीजिए,
कोई बात नहीं, लेकिन पेशानी पर बल नहीं पड़ना चाहिए, वरना लिखा है उलमा इकराम ने, आदमी चेहरे से और पेशानी से नागवारी का इजहार करता है, इसलिए सबसे पहले कयामत के दिन इस पेशानी को जलाया जाएगा, इसे जला करके भस्म कर दिया जाएगा। और फिर आदमी देखता है कि हाँ मैं बाहर के कमरे से अंदर चला जाता हूं, पुष्ट फेर करके, पहले इस पहलू को फेरता है, फिर इस पहलू को फेरता है, फिर पुष्ट को फेर करके अंदर दाखिल हो जाता है और कह देते हैं बहुत सारे लोग बच्चों से, अभी नहीं है, बाद में मिलेंगे, 2 घंटे के बाद आना, कल आना, 2-3 दिन के बाद आना। ये तरीका तो लिखा है मुफस्सिरीन ने। तो क्या होगा जब ये पुष्ट फेरता है, अपना पहलू फेरता है, उस जहन्नम की आग पर लाल की हुई जो चादर होगी उसे इसके पहलू पे लगाया जाएगा, ये जल के यहां तक खत्म हो जाएगा, फिर इधर लगाया जाएगा, ये जल के यहां तक खत्म हो जाएगा, पीछे लगाया जाएगा, वो जल करके आगे तक खत्म हो जाएगा और फिर सही कर दिया जाएगा। ये सजा चलती रहेगी मेरे दोस्तों। बस अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है कि इसकी मियाद क्या होगी। एक हदीस के अंदर आता है, जो लोग ज़कात नहीं देते, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके मालों का सांप बना देगा, जहरीला गंजा सांप जो होता है, जिसके ऊपर से बाल और रुएं उड़ जाते हैं ज्यादा जहर की वजह से, और वो गले में लिपट करके ज़कात ना देने वाले को यहां पेशानी पे से काटेगा, डसेगा, ये चीखें मारेगा जहर की वजह से, इसकी चीखें निकलेंगी। ये जितना चीखेगा वो सांप भी बोलेगा जोर से, अना कंजुक व अना मालुक, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं, सोना चांदी हूं, जेवरात हूं, रुपए पैसे हूं, जो दुनिया में तू जमा कर करके जोड़ जोड़ के रखता था वो हूं। अल्लाह ने आज मुझे तेरे ऊपर मुसल्लत कर दिया है और मैं जब तक तुझे डसता रहूंगा जब तक ये कयामत का दिन खत्म नहीं हो जाता और फैसला नहीं हो जाता। मेरे भाइयों, बहुत लम्हा फिक्रिया है, सोचना चाहिए हमें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इन बातों पर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात पर गौर व फिक्र करके फैसला करना चाहिए। जो अब तक गफलत हो गई, सुस्ती हो गई, इंशाअल्लाह वो आइंदा नहीं होगी। ज़कात के मामले में कोताही नहीं करनी, बहुत खतरनाक अजाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुझे जब मेराज पे ले जाया गया तो मैंने जहन्नम का भी नजारा किया। जिब्रील अमीन मुझे जहन्नम पर ले गए। मैंने जहन्नम में कुछ लोगों को देखा कि वो नंगे हैं, बस आगे एक छोटा सा कपड़ा बंधा हुआ है, पीछे छोटा सा कपड़ा बंधा हुआ है, और क्या खा रहे हैं? ज़क़ूम, जो हमारे यहाँ कटेली होती है ना, ऊंट खाते हैं जिसको, उससे भी खतरनाक, खावे तो फंस जावे, गले के अंदर फंस जाए, मुंह के अंदर, वो खा रहे हैं, पत्थर खा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैंने जिब्रील अमीन से पूछा ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अमीन ने मुझे बताया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो मालों की ज़कात अदा नहीं किया करते थे, उनको ये सजा दी जा रही है यहां पर। मेरे भाइयों, गौर करो, फिक्र करो, ज़कात जो जिंदगी में अब तक नहीं दी, ज़ेवरात की नहीं दी, वो खतरनाक जहन्नम का सांप बन जाएंगे। हाँ, वो जहन्नम की आग के कंगन और जेवरात बन जाएंगे हमारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए और बीवियों के लिए। हाँ, बैठ करके एक एक पाई का हिसाब लगा करके बस कितना करना है, 2.5% देना है, कुछ भी नहीं करना। 1 लाख पे 2,500 निकालना है, कुछ भी नहीं निकालना। हाँ, एक मसला यह है कि निसाब क्या होता है, किस पर ज़कात जो है वो फर्ज होती है और कब वाजिब होती है ज़कात। पहली बात तो यह है, जिस माल पर ज़कात वाजिब होती है उस पर साल गुजरना चाहिए, पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाए। वो माल कौन कौन से हैं? नंबर 1, सबसे पहले रुपया पैसा, बैंक में रखा हुआ 1 साल तक रखा हुआ पैसा है, उस पर ज़कात है। नंबर 2, सोना और चांदी। नंबर 3, बिजनेस का माल, दुकान में रखा हुआ है, बेचने के लिए रखा हुआ है, बिजनेस का माल, इसमें भी ज़कात है, जिस पर साल गुजर जावे, जो आता है जाता है और निसाब के बकदर रहता है। बिजनेस का माल, रुपया पैसा, सोना चांदी, बिजनेस का माल,
चाहे वो प्लाट हो, चाहे वो कंपनी के शेयर्स हों, जो भी बेचने के लिए आपने चीज खरीद रखी है, चाहे वो भैंस हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो बकरियां हो, तो अब ये बिजनेस का माल है। तो जो भी बिजनेस का माल है वो सब की मजमूई इकट्ठी कीमत लगा करके निसाब के बकदर हो जावे, उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। कितना निसाब है? अलग से सोने का जो निसाब है 7.5 तोला है। 7.5 तोला जो 87 ग्राम 479 मिलीग्राम होता है। 87 ग्राम 479 मिलीग्राम होता है। और चांदी का निसाब 52.5 तोला जो आपने सुन रखा है, वो तकरीबन 612 ग्राम और 35 मिलीग्राम होता है। 612 ग्राम 35 मिलीग्राम होता है। लेकिन आज जो एतबार किया जाएगा वो चांदी के निसाब का किया जाएगा। तो 612 ग्राम 35 मिलीग्राम की कीमत आज तकरीबन 62,000 रुपए है। तो जिस आदमी के पास 62,000 रुपया नकदी है, 1 साल गुजर गया, ज़कात है। इतनी चांदी है, उस पर ज़कात है। और सोने के साथ कुछ रुपया पैसा कुछ चांदी है और 62,000 की उसकी मजमूई कीमत बन जाती है, उस पर ज़कात है। थोड़ा सा सोना है 2 तोला और थोड़ी सी चांदी है, वो मिलकर के मिसाल के तौर पे 62,000 या उससे ज्यादा बन जाती है, उस पर भी ज़कात है। सबको इकट्ठा किया जाएगा। 1 तोला सोने की कीमत ही बहुत हो जाती है, सोना थोड़ा सा है, आधा तोला है, और चांदी भी थोड़ी सी है, 62,000 को नहीं पहुंचती, लेकिन नकदी उसके साथ में है, बिजनेस का माल उसके साथ में है। सबको मिलाकर के 62,000 हो गया, इस आदमी पर ज़कात हो गई। साल गुजरना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है, एक आदमी पूरे साल साहिबे निसाब रहता है और उसका साल पूरा होता है रमजान में। पहले रमजान को वो समझता है अब मेरा 1 साल पूरा हो गया। पहले रमजान को उसके पास 10 लाख रुपए और आ गए, अब इस 10 लाख की भी ज़कात देनी है। और पहले रमजान के बाद आए दूसरे रमजान को तो ज़कात नहीं देनी, लेकिन ये तय करना पड़ेगा। इसमें बहुत सुस्ती और गफलत होती है, हमें यही पता नहीं हमें अपना साल कब से शुरू करना है और कब पूरा करना है। आज जितने यहां पर बैठे हुए हैं ये तय करके उठे, अब तक जो सुस्ती गफलत हो गई, अब से हमारा साल जो ज़कात का शुरू होगा वो पहले रमजान से शुरू होगा, और आइंदा साल जब पहला रमजान होगा तो हमारा साल पूरा हो जाएगा। और उस दिन जितना माल हमारे पास होगा, सोना चांदी रुपया पैसा माले तिजारत और प्लाटें और जितनी चीजें हैं, सबकी कीमत इकट्ठी करके ये हो गए साहब इतने लाख रुपया, 2.5% उसमें से निकाल दो। ये तरीका है ज़कात अदा करने का, इसलिए इसका एहतमाम करें। मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह आइंदा जुमे को उशुर के बारे में, सदक़तुल फित्र के बारे में बयान किया जाएगा। आप हजरात ये तय करें, इंशाअल्लाह जैसे हम रोजा रख रहे हैं ज़कात का भी एहतमाम करेंगे और खुद पहुंचाएंगे। इस्लामी हुकूमत नहीं है, वरना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आमिलीन ज़कात को भेजा करते थे। 2-2 3-3 4-4 जाते थे, भाई ज़कात दो। ज़कात वसूल करते थे, बकरियों की ज़कात भी, ऊंटों की ज़कात भी और दूसरी चीजों की ज़कात भी, सब इस्लामी हुकूमत इकट्ठे करके जो अमीरुल मुमिनीन होते थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने ला करके जमा कर देते थे। फिर मुस्तहिकीन में वो खर्च की जाती थी, और अगर कोई ज़कात ना देवे उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाल के बाद कुछ लोगों ने ज़कात देने का इनकार कर दिया। सबसे पहले खलीफा सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलवार निकाल करके न्याम से खड़े हो गए। उन लोगों से जिहाद करूंगा, जंग करूंगा जो ज़कात नहीं दे रहे, जिन्होंने ज़कात का इनकार कर दिया। यानी कहते हैं तलवार के बलबूते पर ज़कात वसूल की जाएगी। मेरे दोस्तों, अगर इस्लामी हुकूमत हो तो सख्ती के साथ ज़कात वसूल करे लोगों से। इसलिए हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां जवाब देना है, कब्र के अजाब से बचना है,
قیامت کے دن کی سختیوں سے بچنا ہے، جہنم کے عذاب سے بچنا ہے، اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ جس سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، جس کو کامیاب کر دے وہ کامیاب ہے، اور اللہ جس سے ناراض ہے وہ ناکام ہے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام سے راضی اور خوش ہو جائے، اور ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو ہمیں دنیاوی زندگی میں بھی کامیاب کر دیں، اخروی زندگی میں بھی کامیاب کر دیں، اور جہنم سے بچا کر جنت تک لے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔